Yes, good morning to all of you. Before I start the lecture for the day, I want to again inform you as ma'am had come yesterday into the class and she had already informed you need to be very serious and keep completing your course and doing all the assignments as we shall be having our pre-boards from 1st of December. So be prepared for it and it will be based on the same pattern which we shall be having for the CBSE board exams for this particular session. So I shall be preparing the question paper exactly in the same pattern. So start preparing for it. Meanwhile, we are completing the last two chapters. Okay, when we are reading this, you keep completing the first book also. उसको भी revise करते रहो साथ साथ. And like questions which I had already given in the unit exam, term exam, you need to revise those questions because those are some of the very important questions which mostly are asked in the CBSE exams. So and again we shall be taking revision of that also once we finish this particular book. Okay, so these were some of the important instructions. Yesterday I forgot to convey it to you, but I think principal ma'am came to the class. She had conveyed it to you. Because after that we had meeting. Next period was of Rekha ma'am that day, and I told her to convey, but I think she forgot to tell you. Then yesterday in the morning I didn't remember to tell you. But be prepared and circulate this message amongst your classmates also. In fact, I will message it in the class WhatsApp group also. But you can tell your friends personally also that from 1st of December, ये डेट बताइए मैंने 1st of December प्री बोर्ड्स एंड बी वेरी सीरियस एंड पर्टिकुलर अबाउट योर दैट प्री बोर्ड एग्जाम एटलीस्ट टिल नाउ. अभी तक मुझे पता है कोई एग्जाम इतना सीरियसली नहीं दिया है मोस्ट ऑफ यू ने. एंड दिस टाइम वी विल हैविंग अ डिफरेंट पैटर्न व्हिच वी आर प्लानिंग की जिसमें वी आर गिविंग चांस टू वेयर यू कैन राइट योर आंसर्स एटलीस्ट. टिल नाउ यू हैव बीन लाइक टाइपिंग, तो उसमें आप लोग की वो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम. बोर्ड एग्जाम्स में कुछ भी हो जाए यू आर नॉट गोइंग टू टाइप दैट, यू हैव टू राइट. तो आप लोग की हैबिट हो एग्जाम्स में कैसे आंसर सीखना है. And long answer means long answer. 4 marks question means 4 marks question means 4 marks question. Where I will mention the limit, word limit also. So follow that word limit. There are many questions for which you can write the long answer also, long stories also. But for the same question, if I ask you to write for 2 marks, you have to just give the definition and the exact content what I am asking you. बहुत बार क्या हुआ है, given you question 2 marks का है, long content लिख दिया 2 marks में, and the question which I am asking for 4 marks, 5 marks or 6 marks, वहाँ पे content थोड़ा सा आ रहा है. So this should not happen. Always follow the word limit which I have given you. I think खुशी का थोड़ा सा. So with these important instructions, we are going to start the topic for the day. And as yesterday we had covered the topic that was election results, outcomes or electoral verdicts of election 1967, which we have seen completely in detail. And we also have seen what were the new outcomes and new political phenomena after the this election of 1967. So that's what were the two important political phenomena we have seen: coalition and defection. Very good. So these are the two new political phenomena which we have read, and very first time it came into existence in the Indian politics that we called as coalition and defection, which we have already covered. We had covered this particular pages. Do you know columns also? And the topic for the day is the split in the Congress. And roughly I have given you the idea that what happened after the election of 1967. कैसे division आ गया in Congress, within the Congress factions already. The factions I have told you suddenly. What do you understand by factions? Different ideologies के अंदर हम थे, कांग्रेस के अंदर ही थे, बट वो फिर भी उनमें inequalities थी, दूसरे के साथ differences थे. तो differences पहले से थे. Finally 1967 के बाद उनमें क्या आ गया, split आ गया कांग्रेस में. And this is the part 7 of this particular chapter, that is parties and party system in India. So let's start this topic, split in the Congress. Rough idea I had already given you. कैसे हुआ 67 के जस्ट बाद नहीं हुआ. 67 के बाद क्या हुआ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे. किसकी डेथ हो गई थी, किसकी डेथ हो गई थी 1967 में, तो हमारे इलेक्शन हो गए. उसके बाद 69 में क्या हुआ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं. किसकी डेथ हुई थी, हु वाज द प्रेसिडेंट, कल बताया था मैंने, जाकिर हुसैन. तो उनकी डेथ हो जाती है सडनली 1969 में इस इलेक्शन के बाद. तो फिर एक वेकेंट तो नहीं छोड़ सकते सीट हम प्रेसिडेंट की, उसके लिए इलेक्शन होता है. तो उस इलेक्शन से क्लियरली लोगों को पता चलता है कि देयर इज अ स्प्लिट इन द कांग्रेस नाउ. इसके रिजल्ट के बाद जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है फॉर्मली कि यहाँ पर स्प्लिट आ चुका है कांग्रेस में. कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई. उससे पहले इंटरनली डिविजन्स थे, प्रॉब्लम्स थी, फैक्शंस थे, बट वो बाहर नहीं पता था. जैसे मैंने घर का एग्जांपल दिया था, जब तो हमारे में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है घर में ठीक है, लेकिन जब ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं लोगों को बाहर पता लगने लगता है. तो वैसे ही हुआ, कांग्रेस का घर था एक,
उसके अंदर पहले से फैक्शंस थे, प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो रही थी सिंडिकेट्स एंड इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के बीच में, बट वो क्लियर कब हुआ जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए 1969 में, सडन डेथ ऑफ जाकिर हुसैन उसके बाद, ठीक है। सो वी विल सी दिस स्टोरी। आई थिंक ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इट इज इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड यू कैन अंडरस्टैंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द स्टोरी हियर। We saw that after the 1967 election, the Congress retained power at the center, but with the reduced majority and lost power in many states. This we have seen. इस रिजल्ट का क्या हुआ, बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट किसकी आ गई, नॉन कांग्रेस की आ गई, और सेंटर में गवर्नमेंट तो बनाई बट बहुत कम मेजोरिटी के साथ। जो पहले मेजोरिटी रहती थी वो पावर, वो डोमिनेंस खो चुकी थी कांग्रेस, ठीक है। More importantly, the result proved that the Congress would be defeated at the election. इससे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, नाउ पीपल हैड फेथ एंड ट्रस्ट दैट यस वी कैन रिमूव कांग्रेस फ्रॉम द पावर। जो डोमिनेंस है कांग्रेस उसको कम किया जा सकता है, एंड कैसे कम किया जा सकता है, विच द टू फिनोमेना वी हैव दैट इज डिफेक्शन एंड कोलिशन। इसकी हेल्प से ही नॉन कांग्रेस को पावर से हटाया किसने, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की कोलिशन गवर्नमेंट जो थी, जिनको हमने स्टेट लेवल पे क्या बोला था, SVD, ठीक है। बट देयर वाज नो सब्स्टिट्यूट एज येट। पर अगर हम देखें, अगर हम प्रॉपर्ली रीड करें, एज पॉलिटिकल स्कॉलर्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, जो देखते हैं कि एक्चुअली पॉलिटिकल सिस्टम हमारी कंट्री में चल कैसा रहा है, जब उन्होंने डिटेल स्टडी की तो उन्होंने अभी भी देखा कि अभी भी पावर में कौन है, कांग्रेस इज स्टिल इन द पावर। जो कांग्रेस को पावर से रिमूव किया है, जो इसका डोमिनेंस हमें लग रहा है कम हुआ है, वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि जो बहुत सारी अलग अलग आइडियोलॉजीज की पार्टीज है वो एक साथ आकर के बस उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग कांग्रेस को हरा दिया है। पर ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है। कभी बहुत सारे जिनकी आइडियोलॉजीज हमारे फ्रेंड्स, हम ऐसे के साथ फ्रेंड बन सकते हैं, जो मुझे कुछ पसंद है उसे कुछ और ही पसंद है, तीसरे कुछ और ही पसंद है, कभी वी कैन प्लान आउट टू गो आउटसाइड एंड एंजॉय, नो। कहीं ना कहीं अगर हमारी फ्रेंडशिप है तो वी नीड टू हैव सम, सारे इंटरेस्ट तो नहीं हो सकते, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं हो सकती है, बट समहाउ वी हैव टू हैव द सम कैरेक्टरिस्टिक्स, सम लाइकिंग्स, सम इंटरेस्ट व्हिच आर कॉमन। अगर मुझे कहीं हिमाचल प्रदेश घूमने जाना है तो वही इंटरेस्ट मेरे 4 फ्रेंड के साथ और होना चाहिए। यस, उनको भी इंटरेस्ट है घूमने में, उनमें से किसी को ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता है, घर से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है, तो विल बी एबल टू हैप्पी विद अस, चला भी जाएगा, अगली बार बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा, है ना। ऐसे होगा, तो ऐसे होगा जो हमने बना दी नॉन कांग्रेस इतनी सारी अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ, वो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसीलिए यहाँ पर ये टर्म यूज की है। देखिए, बट देयर वाज नो सब्स्टिट्यूट एज येट। अभी भी कांग्रेस के सामने कोई ऐसी अपोजिशन पार्टी नहीं थी जो इंडिपेंडेंट होकर के चैलेंज कर सके किसकी पावर को, कांग्रेस की पावर को, ठीक है। Along with these elections, you have to exactly understand कि what were the circumstances in the Indian politics. कांग्रेस का डोमिनेंस कम हुआ, इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसके सामने एक सब्स्टिट्यूट आ गया। सब्स्टिट्यूट नहीं बोल सकते हम उन गवर्नमेंट्स को, अलग अलग आइडियोलॉजीज, कितने सारे लोग एक साल के साथ आ गए, अगले साल से उनकी आपस में प्रॉब्लम्स हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गए, एक ने बोला मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, दूसरे ने बोला मैं छोड़ रहा हूँ, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पाए। एक साल के अंदर ही उनमें से मैक्सिमम जो हम 8 स्टेट्स पढ़ रहे हैं, उनमें मैक्सिमम वो गवर्नमेंट ज्यादा टाइम नहीं चली और वहां पे क्या लग गया, प्रेसिडेंशियल रूल। होता है ना, जब गवर्नमेंट कांट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कांट लुक आफ्टर द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ द पीपल, पीपल्स आर नॉट आर डिसकंटेंट विद देयर रूल, तो ऐसे में क्या होता है, बहुत जल्दी क्या लग जाता है, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। गवर्नर होता है हर स्टेट में, तो गवर्नर गिव्स द कंप्लीट रिपोर्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। गवर्नर देखता है उस गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है गवर्नर को, तो गवर्नर का क्या रोल रहता है, देखता है वो स्टेट में जो फंक्शनिंग हो रही है विधानसभा में, असेंबली में, फंक्शनिंग में, डेवलपमेंट पॉलिसीज में, वो प्रॉपर्ली हो रही है नहीं हो रही है, लोग खुश है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इफ दे आर नॉट डूइंग सो, वहां पर किसका रूल लग जाता है, प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ मोस्ट ऑफ द टाइम, तभी बोल रहे हैं कि कोई अभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं था कांग्रेस का। They lost majority and their new combination were formed, और देखिए जहां पे जो न्यू कॉम्बिनेशन बने थे, and they found president's rule had to be imposed, बहुत जगह president rule जो है they have to impose that. Now the next topic is Indira versus the syndicate. तो ये तो जनरल सा आपको दिया है कि what were the outcomes of, इसके बाद कैसी सिचुएशन थी, किन किन स्टेट सर्वाइव कर पाई, प्रेसिडेंशियल रूल लगे। पर आप देख रहे हैं एक्चुअली प्रॉब्लम इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट्स क्या थी। सिंडिकेट्स, आई होप यू नो, एवरीवन नोज दैट। द रियल चैलेंज ऑफ इंदिरा गांधी केम not from the opposition but from within her own party. This is the most challenging for any person as a individual. If I say I do not have to face challenges from my enemy or from my rival, if I have to face challenges from the people I have faith on, within my family, within my friends, so that is the most challenging.
इंदिरा गांधी के साथ दिस वाज द सेम सिचुएशन, उसको अपोजिशन पार्टी का कोई डर नहीं था, देयर वाज नो अल्टरनेट पावर टू चैलेंज द पावर ऑफ इंदिरा गांधी, बट प्रॉब्लम और चैलेंजेस कहां से फेस कर रही थी वो, विद इन हर पार्टी, जो उसकी पार्टी के ही अपने मेंबर्स थे, ओल्ड और बहुत इन्फ्लुएंशियल एंड इंपॉर्टेंट ओल्ड लीडर्स थे जिनको हम सिंडिकेट्स कहते हैं, उनके साथ उसके चैलेंजेस आ रहे थे। तो लेट्स सी व्हाट वर दोस चैलेंजेस। अब यहाँ पे मतलब क्लियर हो रहा है कि जो फैक्शंस थे, जो स्प्लिट आ गई कांग्रेस की, वी आर इनटू दैट। This we have already covered, I think. Congress syndicate, you can read it in on कल मैंने क्वेश्चन भी दिया था, तो you must have seen. It's the same thing. So she had to deal with the syndicates, a group of, again there is a definition what do we mean by syndicate, you can underline it, a group of powerful and influential leader from within the Congress. ठीक है? The syndicates had played a role in the installation of Indira Gandhi as the Prime Minister. This we know it very well. जब in 1966 इलेक्शन हुए थे, एंड किसका कंपटीशन था, मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। तो हाउ इंदिरा गांधी कैसे बनी थी प्राइम मिनिस्टर, विद द सपोर्ट ऑफ सिंडिकेट्स। तो वही लिखा है देखिए, इंस्टॉलेशन ऑफ इंदिरा गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर बाय इंश्योरिंग हर इलेक्शन एज द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, दीज लीडर्स एक्सपेक्टेड, उसके बदले में उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया है, इंदिरा गांधी टू फॉलो देयर एडवाइस। वो चाहते थे हर एडवाइस इंदिरा गांधी उनको फॉलो करे, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी सजेशन चाहिए हो, वो सिंडिकेट्स को कांटेक्ट करे। Generally, however, Indira Gandhi attempted to assert her position within the government and the party. She chose her trusted group of advisors. Now what happened? Indira Gandhi had selected some people who were like the advisors to, होता है कोई अपने लिए वर्क नहीं, प्रेसिडेंट भी होगा तो उसका भी एडवाइजर होगा, और प्राइम मिनिस्टर भी है, वो अपने आप से सारे स्पीच नहीं लिख देता है, सारी पॉलिसीज खुद ही बना देता है। तो दे हैव वेरी गुड एडवाइजर्स जो बहुत ही एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, और नॉलेज वाइज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसी तरीके से इंदिरा गांधी ने जिससे एडवाइजर्स को जो अपने पास रखा, वो कौन थे, नॉन कांग्रेस पार्टी से बाहर के लोगों को अपना एडवाइजर बना लिया। तो इस बात से प्रॉब्लम किसको होगी, सिंडिकेट्स को, बिकॉज दे वांटेड कि एडवाइसेस के लिए या किसी भी कंसर्न के लिए, किसी भी पॉलिटिकल कंसर्न से दे वांटेड इंदिरा गांधी उनसे पूछे, उनसे कंसेंट ले। एंड इस तरीके से वी कैन सी दैट स्लोली एंड केयरफुली, बहुत केयरफुली, डायरेक्टली शी डिडंट स्टार्ट फाइटिंग विद देम, स्लोली उसने उन्हें क्या करना, साइड लाइन करना शुरू किया। जैसे एक बार एडवाइजर लगी है, अपनी पॉलिसीज, नई पॉलिसीज आने लगी, उनसे इतना कंसर्न नहीं ले रही थी, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, स्लोली उसने क्या किया, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे सीनियर सिंडिकेट्स, उनको साइड लाइन करना शुरू किया और अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखानी शुरू करी। तो उसने एकदम से उनसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं किए, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली। तभी यहाँ पे लिखा देखिए, स्लोली एंड केयरफुली शी साइडलाइंड द सिंडिकेट्स। इंदिरा गांधी 10 पर अभी भी स्प्लिट क्लियर नहीं था, स्प्लिट अभी अंदर ही था कांग्रेस से, किसी को पता नहीं था यहाँ तक भी। इंदिरा गांधी 10 फेस 2 चैलेंजेस, तो इंदिरा गांधी के सामने 2 चैलेंजेस आ रहे थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, as she needed to build her independence from the syndicate. The first very important challenge for Indira Gandhi was to be independent of these syndicates. इनके जो कंट्रोल से वो बाहर जाना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि she should work according to the suggestions of these old Congress leaders which were called syndicates. तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। ये सबसे बड़ा चैलेंज था इंदिरा गांधी के लिए, जिसके लिए उसने वर्क करना ऑलरेडी शुरू कर दिया था। जैसे आई टोल्ड यू, she had some advisors जो कांग्रेस पार्टी के बाहर के लोग थे, ठीक है। What was the second challenge? She also needed to work towards regaining the ground that Congress had lost in 1967. As she was the daughter of Nehru, so she was very closely we can say connected to this political party. Of course, उसकी father की पार्टी थी, तो बहुत closely वो connected थी और feel करती थी कांग्रेस के लिए। And she was very sad about जो result आया था 67 का, जिसमें हमने देखा कि how the dominance of Congress had reduced, उसको वो क्या करना चाहती थी, दोबारा establish करना चाहती थी। She wanted, जैसे कि फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस was the most dominant party, in the same way she wanted कि जब नेक्स्ट इलेक्शन हो, नेक्स्ट होना था कब, 1971 में जो इलेक्शन हुआ, एक्चुअली वो होना तो 72 में था, पर 71 में इंदिरा गांधी ने कराया था, क्योंकि she dissolved the government। क्यों डिसॉल्व की थी वही बताऊंगा। तो 71 में जो इलेक्शन हुए, शी वांटेड कि जो पहले गवर्नमेंट का डोमिनेंस था, पावर था, लोगों का ट्रस्ट था, फेथ था कांग्रेस के ऊपर, वो उसे क्या करे, रीगेन। तभी व्हेन वी रीड दिस चैप्टर का नाम क्या है, चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन। द वर्ड रेस्टोरेशन हैज बीन यूज्ड, जहां पर 1971 में इंदिरा गांधी दोबारा इलेक्शन में जीतती है, बट कैसे जीतती है, मोर देन द वोट्स एंड मेजॉरिटी व्हिच दे गॉट इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन था 52, 57, 62 का, उससे भी ज्यादा पावर, उससे भी ज्यादा डोमिनेंस, उससे भी ज्यादा मेजॉरिटी लेकर के आई इंदिरा गांधी का 1971 के इलेक्शंस में। पर वो कब होगा, स्प्लिट के बाद, जब कांग्रेस अलग अलग हो गई है।
तो दिस वाज द टू चैलेंजेस, एक सिंडिकेट से अलग होना, इंडिपेंडेंट होना, और दूसरा क्या, जो 67 में कांग्रेस ने अपनी इमेज को लॉस किया था उसको दोबारा से रिस्टोर करना नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस में इन द स्टेट असेंबलीज एज वेल एज इन द लोकसभा, दोनों जगह। She also needed to work towards the regaining the ground that Congress had lost, ये हो गया, ठीक है। Indira Gandhi adopted a very bold strategy. She converted a simple power struggle into an ideological struggle. Now she had various ideologies, various strategies, अलग-अलग मेथड यूज किए हैं उसने कांग्रेस को दोबारा पावर में लाने के लिए। तो उसके लिए उसने क्या किया, देखिए, she launched a series of initiatives to give the government policy a left orientation. अब उन्होंने नई नई गवर्नमेंट की पॉलिसीज लानी शुरू करी और उसको हमने क्या बोला, लेफ्ट ओरिएंटेशन। जैसे लेफ्ट पार्टीज की जो व्यूज होती हैं, लेफ्ट पार्टीज की व्यूज क्या होती हैं, लेफ्ट पार्टी कोई पार्टी नहीं है जिसकी भी सोच होगी कि पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट करते हैं, कि सारे जो रिसोर्सेज होने चाहिए, पावर होनी चाहिए, किसके कंट्रोल में होनी चाहिए, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए, गवर्नमेंट को उसे रेगुलेट करना चाहिए प्रॉपर्ली फॉर ऑल द पीपल। उन पार्टीज को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट पार्टी। राइट कौन सी हो जाती है, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, विच वाज फॉलोड इन यूएस से, ठीक है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने थोड़ा लेफ्ट ओरिएंटेशन को फॉलो किया, वेयर शी अडॉप्टेड मेनी गवर्नमेंट पॉलिसीज बट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। उनको पता था कि 71 में जो इलेक्शन करवाऊंगी उसमें मुझे अपना रेस्टोरेशन करना है कांग्रेस सिस्टम का, कांग्रेस पावर का, कांग्रेस डोमिनेंस का। फॉर दैट शी हैड 10 पॉइंट प्रोग्राम, अंडरलाइन दिस, ये सब प्लानिंग हो रही है किसके लिए, रेस्टोरेशन ऑफ द पावर ऑफ द कांग्रेस। So they had adopted 10-point program in May 1967. 67 से ही इलेक्शन के जस्ट बाद से ही उन्होंने ये 10-point program को अडॉप्ट किया। This program included social control of banks. तो इसके अंदर if you read, what was the most important thing? Socialization of banks, nationalization of banks, and general insurance. So if we see all these things which were the new policies brought out by Indira Gandhi, these are the left orientation. समझ पा रहे हैं ना नाउ, लेफ्ट ओरिएंटेशन विच वाज फॉर द पब्लिक, ओके। शी वाज ट्राइंग टू बेनिफिट द पीपल नाउ बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज। सीलिंग ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी, लाइक पीपल आर हैविंग सो मच ऑफ प्रॉपर्टी इन द अर्बन एरियाज, उनको सील करके उनको प्रॉपर्ली गवर्नमेंट के नॉर्म से अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना, इनकम को देखना रूरल एरियाज में, हाउसेस प्रोवाइड करना रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज यू अंडरस्टैंड, विलेज रीजन्स में लोगों के लिए घर प्रोवाइड करवाना, उनको पीडीएस, व्हाट इज दिस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, डज एनीवन नो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, व्हाट कुछ वो मिड डे मील वगैरह, नो राशन शॉप, यस राशन शॉप। मिड डे मील में भी उसी का राशन जाता है एक्चुअली, व्हाट शी इज सेइंग, मिड डे मील में भी वहीं का जो एक्स्ट्रा राशन होता था जाता है बच्चों के लिए, जो 1st to 5th तक का स्कूल होता है गवर्नमेंट स्कूल्स। बट बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जो हमारे कार्ड्स बनते हैं, येलो कार्ड, व्हाइट कार्ड, यू मस्ट हैव सीन घर के आसपास, दैट ये सिस्टम इंदिरा गांधी के टाइम से शुरू हुआ था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, ऑफ फूड ग्रेन्स। लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, प्रोविजन ऑफ हाउसेस साइट्स इन द रूरल पुअर, while the syndicate leaders formally approved this wing program, they had serious reservations about the same. So these were the policies and plans of Indira Gandhi. Although इस टाइम तक जो कांग्रेस syndicates थे, they were also the part of Indira Gandhi government. So formally they have also accepted these principles, these programs of Indira Gandhi. उन्होंने accept किया हुआ है, but they were not functioning, they were not reacting to these principles. But there was only one person who was working towards all these following principles. वो कौन थी? Indira Gandhi. क्योंकि जब तक स्प्लिट नहीं हुआ था, 67 में स्प्लिट नहीं हुआ था, और ये प्रोग्राम कब आ गया था? दे हैव बीन फंक्शनल फ्रॉम 67 इलेक्शन के बाद से ही, ठीक है। अब 69 में क्या होता है? सो नाउ द एग्जैक्टली द पॉइंट हैज कम वेयर वी विल रीड कि ये जो स्प्लिट की बात इसे कर रहे हैं 1969 में, वो एग्जैक्टली कहां से हुआ है, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969, ठीक है। The factional rivalries between the syndicate and Indira Gandhi. I hope now you can understand this term. Factional rivalries. Rivalry क्या होती है? हमारा competition इसके साथ, ठीक है। तो factional rivalry तो चल रही थी किसके बीच में? Between syndicates and Indira Gandhi came in the open in 1969. It was already established. It was already prevalent. ये जो if you talk about the rivalry and factionism within the Congress, but it came into open. लोगों को पता चला in the presidential election of 1969. So let's see कैसे पता चला. Following President Zakir Hussein's death, you can underline that the post of President of India fell vacant that year. तो वो सीट after his death वो सीट vacant हो गई, but we cannot keep that particular seat vacant. It is one of the most important seat. President is the head of the state, we can say.
Despite Mrs. Gandhi's reservation, the syndicates managed to nominate her long-time opponent and then Speaker of the Lok Sabha, N. Sanjeeva Reddy. तो जो सिंडिकेट्स थे, ओल्ड सिंडिकेट्स, उन्होंने एक कांग्रेस का जो लीडर था और उसकी टर्म्स अच्छी नहीं थी किसके साथ, इंदिरा गांधी के साथ. दे हैड राइवलरीज और वो लोकसभा के स्पीकर भी थे किसकी गवर्नमेंट में, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में. तो जो सिंडिकेट्स थे उन्होंने किसको खड़ा कर दिया इलेक्शन में, एन संजीवा रेड्डी, जिसके साथ इंदिरा गांधी की टर्म्स अच्छी नहीं थी. एंड दे कॉल्ड हिम एज द फॉर्मल पर्सन हु विल बी इलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्शन. तभी हमने लिखा है nominated her long time opponent and then speaker of the Lok Sabha. तो ये उस टाइम पे क्या थे, लोकसभा के स्पीकर भी थे, एन संजीवा रेड्डी. As the official Congress candidate for ensuring presidential election, इंदिरा गांधी retaliated. तो इसके अगेंस्ट इंदिरा गांधी कैन नॉट से कि ये कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा, बिकॉज पूरी पार्टी ने डिसाइड किया है कि हमारा जो फॉर्मली हमारा जो एक मेंबर होगा वो कौन होगा, एन संजीवा रेड्डी. इंदिरा गांधी के उसके साथ टर्म्स अच्छे हैं या नहीं है उससे मैटर नहीं करता था. बट इंदिरा गांधी ने रेटिलेट किया. इसका होता है ना एक्शन, देयर इज अ रिएक्शन. तो इसका रिएक्शन इंदिरा गांधी ने कैसे किया, उसको मना तो नहीं कर सकते कि यू कैन नॉट बी द कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969. तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, शी इनकरेज द देन वाइस प्रेसिडेंट. तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी वर्किंग वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उनको इनकरेज किया टू बी द कैंडिडेट अगेंस्ट एन संजीवा रेड्डी बट एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. एन संजीवा रेड्डी तो किस पार्टी के, कांग्रेस के. AVP get the vote on the name of the Congress, बट जो सपोर्ट कर रही थी इंदिरा गांधी, इनकरेज कर रही थी किसको, वीवी गिरी को. पर उन्होंने कैसे कहा कि आप कैसे इलेक्शन लड़िए, इंडिपेंडेंट. वी कैन फाइट द इलेक्शंस, वी कैन कंटेस्ट इलेक्शंस इंडिपेंडेंट ऑल्सो, अगर हमें किसी पार्टी से टिकट नहीं मिली है. पर उससे जीतना बहुत मुश्किल होता है जब तक हमारे पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है. मैं अकेला जीत भी जाऊँ तो मैं कुछ नहीं, डेवलपमेंट कुछ नहीं कर पाऊंगा. पर मेरी पार्टी बहुत बड़ी है तो मैं कर सकता हूँ. इसीलिए इंडिपेंडेंट का होना मुश्किल होता है थोड़ा. तो वीवी गिरी, ये नेम से याद रखेंगे. एन संजीवा रेड्डी कांग्रेस के हो गए ऑफिशियल कांग्रेस लीडर, जिसको अपॉइंट कर दिया एज अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. कंफ्यूज मत होना प्लीज, लोकसभा इलेक्शन या जनरल इलेक्शन नहीं है ये वाले जहां से स्प्लिट आया कांग्रेस. कौन सी इलेक्शन से, प्रेसिडेंशियल. जब भी प्रेसिडेंट की डेथ होती है किसी भी रीजन की वजह से, दैट पोस्ट इज वेकेंट, तो देयर विल बी इलेक्शंस. तो उसके इलेक्शन के लिए 1969 में ऑफिशियल कैंडिडेट वाज एन संजीवा रेड्डी एंड इंदिरा गांधी ने बैकअप किया, जिसको इनकरेज किया वाज वीवी गिरी हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट. और एन संजीवा रेड्डी क्या थे, लोकसभा के स्पीकर एट दैट टाइम, जब गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी की आफ्टर 67. ठीक है. टू फाइल हिज नॉमिनेशन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. पर ये याद रखिए वीवी गिरी क्या थे, कांग्रेस के नहीं थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे. शी आल्सो अनाउंस्ड सेवरल बिग एंड पॉपुलर पॉलिसीज मेजर्स लाइक नेशनलाइजेशन. इसी के साथ साथ इसी जब ये अनाउंस हो रहा था तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने कुछ पॉलिसीज और अनाउंस की है. नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स, दे वर लीडिंग मेनी बैंक्स, 14 बैंक्स, उनको क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन. दैट इज दे केम अंडर द गवर्नमेंट, स्टेट के, नेशन के अंडर आ गए. ठीक है. जैसे मैंने बताया जो उनकी प्रिंसिपल्स थे इस टाइम वो किसके लिए फंक्शन कर रही थी, लोगों के लिए. उन्होंने लेफ्ट ओरिएंटेशन, लेफ्ट पार्टीज का जो एक फॉर्मेट होता है, प्रोसीजर होता है, उसे फॉलो करना शुरू करता था, जिसमें वो पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट करते हैं. तो जो प्राइवेट बैंक्स थे उनको क्या बना दिया, पब्लिक बैंक्स बना दिया. ठीक है. प्राइवेट बैंक्स एंड अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स. प्रिवी पर्स क्या होता है, एनीवन नोस प्रिवी पर्स? इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ा था हमने, इंटीग्रेशन फर्स्ट चैप्टर में. व्हेन वी वर रीडिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर क्या था, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. उसमें हमें पढ़ा था क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल पढ़ा था हमने इन द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स. कैसे इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे स्टेट्स थे, हमारे कश्मीर थे और हमारे कौन से स्टेट्स थे, हैदराबाद थे. तो हमने ऐसे 4-5 स्टेट देखे थे जो मर्ज होने को तैयार नहीं थे हमारे इंडिया के स्टेट. वो राजा थे, महाराजा थे, कहीं नवाब्स थे. तो उनको इंडिपेंडेंस किसने दे रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे रही थी. जब ब्रिटिश गवर्नमेंट गई तो उन्होंने उनको ऑप्शन दे दिया था, आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, आप इंडियन गवर्नमेंट के साथ मर्ज भी हो सकते हो. सो दे वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट. वो चाहते थे उनकी पावर्स, ऑटोनॉमी मेंटेन रहे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी. बट वल्लभ भाई पटेल समहाउ मैनेज्ड देम कि वो हमारे इंडिया के साथ मर्ज हो जाए, क्योंकि हम चाहते थे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स हैं. एटलीस्ट हमारी टेरिटरी है, जो सॉवरेनिटी है, हमने जो इतनी मुश्किल से हमें फ्रीडम मिली है उसको हम मेंटेन करके रखें. उसके लिए हमने उनको कैसे भी एक साथ लेकर के आए, वो हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में. तो यहाँ पर उससे मैं आपको बता रहा था. तो प्रीवी पर्स, तो जो शर्त रखी थी, व्हाट वर द रीजन कि वो लोग रेडी हो गए इंडिया की गवर्नमेंट में मर्ज होने को, इंडियन स्टेट में मर्ज होने को. उनको ये कहा गया था कि तुमको कुछ ऑटोनॉमीज दी जाएंगी, तुमको पेंशन्स दी जाएंगी. तो बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई हैं ऑलरेडी इन प्रिंसली स्टेट्स के किंग्स को, प्रिंस को, नवाब्स को. ठीक है.
जो बहुत टाइम से चल रही थी। और इंदिरा गांधी ने क्या बोला, अब ये जो प्रिविलेजेस वी वर गिविंग टू द प्रिंसली स्टेट्स की जो भी प्रिंस थे, नवाब से, उनको अब वो प्रिविलेजेस नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इक्वालिटी है। वी हैव ऑप्टेड फॉर इक्वालिटी, जिसमें एवरी सिटीजन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, सब इक्वल है। देयर कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और एक्सेट्रा, किसी के बेसिस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब इक्वल है। तो जो प्रीवी पर्स जो हम दिया करते थे, एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस, प्रायोरिटीज दिया करते थे इन लोगों को जो मर्ज हुए बाद में, इनको अब ये नहीं दी जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा डिसीजन था किसका, इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट का। दैट्स व्हाई इट्स रिटन abolish कर दिया, abolition of privy purse और the special privileges given to the formal princes। जो पहले के प्रिंस थे उनको बहुत एडवांटेजेस और हम चीजें दिया करते थे, उसको अब बंद कर दिया। मोरारजी देसाई वाज द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, इस टाइम पे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन था, मोरारजी देसाई थे। एंड ही वाज आल्सो द फाइनेंस मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी एट दिस पर्टिकुलर टाइम, जब हम बात कर रहे हैं 69 के आसपास की बात। तो ही वाज नॉट हैप्पी विद द डिसीजंस ऑफ इंदिरा गांधी। उन्होंने एक टाइप से क्या बोला है, ये चीटिंग है, ये धोखा है किनके साथ, नवाब के साथ, प्रिंस के साथ। इसी शर्त पे वो लोग इंडिया के साथ मर्ज हुए थे कि उनको इस टाइप की प्रेफरेंसेस, इस टाइप के एडवांटेजेस मिलेंगे। दैट वाज द रीजन दे हैड कम एंड जॉइंड इंडियन स्टेट्स। पर अब हम कह रहे हैं कि हम लेफ्ट ओरिएंटेशन को फॉलो कर रहे हैं एंड फॉर आवर ओन बेनिफिट्स, कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो अच्छा परफॉर्म करे, लोग उसको वोट दें, हम इस टाइप की चीज़ों को चेंजेस ला रहे हैं, न्यू प्रिंसिपल्स ला रहे हैं, जिसमें हम अबॉलिश कर रहे हैं प्रीवी पर्स, ये गलत है। तो इससे वो नाराज थे, कौन, मोरारजी देसाई। हमको पता है वो शुरू से प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, हर इलेक्शन में ही कंटेस्ट पर उनको कभी वो सपोर्ट मिला नहीं, बट हियर ही वाज द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम। तो ऑन बोथ अवर इश्यूज, तो जो ऊपर के दोनों इश्यूज थे, डिफरेंस इमर्ज, तो बहुत डिफरेंसेस आ गए प्राइम मिनिस्टर का, जिसकी वजह से जो मोरारजी देसाई थे ही लेफ्ट द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर मोरारजी देसाई का थोड़ा सा एक रोल खत्म होता है। उन्होंने नाराज होकर के, ही वाजंट हैप्पी विद द डिसीजंस ऑफ इंदिरा गांधी, उन्होंने पार्टी को क्या किया, गवर्नमेंट को छोड़ दिया, पार्टी भी क्या, उन्होंने ही गिव अप, ही वाज अ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, ही रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, ही लेफ्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक एनी क्वेश्चंस? 10 minutes also. So Congress had seen differences of this kind in the past, but this time both the parties wanted a showdown which took place during the presidential election. The then Congress president S. Nijalingappa, he was the Congress president. हमेशा एक होता है प्राइम मिनिस्टर तो थी इंदिरा गांधी, पर जो एक फॉर्मल उनकी पार्टी होती है उसका एक क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो कांग्रेस पार्टी का जैसे ऑफिशियल एक कैंडिडेट खड़ा करना था, तो ये डिसीजन किसके अंडर लिया जाएगा, प्रेसिडेंट के। ये इंदिरा गांधी से नहीं पूछा जाएगा, कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट होगा उससे पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो ये एस निजलिंगपा थे, ही वाज द प्रेसिडेंट एट दिस टाइम, जब यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। सो ही इशूड अ व्हिप, WHIP। व्हिप क्या होता है, एक ऑफिशियल वी कैन से मैंडेटरी डिसीजन दे दिया कि जितने भी एमपीज और एमएलएज हैं कांग्रेस पार्टी के, दे विल वोट फॉर हूम, किसको वोट करेंगे वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, एन संजीवा रेड्डी। कंपलसरी कर दिया, मतलब व्हिप मतलब एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया, रिटन डॉक्यूमेंट पास कर दिया, जिसमें हर एमएलए एमपी जो कांग्रेस है उसके पास आ रहा है कि उसे किसे वोट देना है, एन संजीवा रेड्डी। हमारे पास चॉइस नहीं है, यू हैव टू वोट हिम। ठीक है, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये प्रेसिडेंट थे एस निजलिंगप्पा issued a whip asking all the Congress MPs and MLAs to vote in favor of संजीवा रेड्डी, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एज अ सिटीजन हम वोट नहीं देंगे। कौन वोट देते हैं, जिनको हमने इलेक्ट किया हुआ है, हमारे एमएलएस स्टेट लेवल पे और हमारे एमपीज। द ऑफिशियल कैंडिडेट को हमें वोट करने को बोला गया। सपोर्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी रिक्वेस्ट a special meeting of the AICC, that is why this faction came to be known as Rekunist, but this was refused after silently supporting। बस silently इंदिरा गांधी was supporting किसको, वीवी गिरी। ओपनली तो नहीं बोल रही थी, और जितने भी इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स भी थे, she had conveyed to them also that we have to support वीवी गिरी in this presidential election। तो कांग्रेस के अंदर ही थी इंदिरा गांधी, but she was not supporting the official candidate because उनके बीच में फैक्शंस थे, डिविजन्स थे, राइवलरीज थी सिंडिकेट्स और इंदिरा गांधी के बीच में। एक्चुअली ये दोनों तो क्या थे, खेल रहे थे, पर मेजर पार्टीज कौन सी थी, सिंडिकेट और इलेक्शन किसके बीच में हो रहा था, देखा जाए तो सिंडिकेट्स और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी से सपोर्ट कर रही थी, वो एन संजीवा रेड्डी को सपोर्ट कर रहे थे। The MPs and MLAs from Congress should be free to, पर फिर इंदिरा गांधी ने एक कंसेंट और एक डिसीजन और बोला, उसने सारे MLAs MPs के सामने बोला कि फ्रीली दे कैन वोट, जिसको भी वोट करना है।
पहले प्रेसिडेंट ने क्या बोला था, पार्टी के विप पास किया था कि कंपलसरी इसमें कह दिया कि हमें किसको सपोर्ट करना है, एन संजीवा रेड्डी को। बट एज द प्राइम मिनिस्टर उस पार्टी में आकर के इंदिरा गांधी ने बोला एवरीवन विल हैव द फ्रीडम टू इलेक्ट द कैंडिडेट ऑफ देयर ओन चॉइस, किसी के प्रेशर में आकर के वोट देने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी एमएलए एमपीज कांग्रेस पार्टी के अंदर में हैं वो फ्री होकर के इस इलेक्शन में वोट करेंगे। जब फ्रीली वोट हुआ तो देखिए आउटकम्स क्या थे। द इलेक्शंस अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ वीवी गिरी द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एंड द डिफीट ऑफ संजीवा रेड्डी द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट। जो ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट था वो हार गया किससे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से, who was वीवी गिरी, who was being supported and encouraged by इंदिरा गांधी। जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया कि कांग्रेस का फॉर्मल एक कैंडिडेट जिसको इन्होंने क्या बोला ऑफिशियल कैंडिडेट, वो हार गया, तो एक बहुत बड़ी ईगो हर्ट होगी किसी सिंडिकेट्स की। They were very angry about it. The defeat of the, तो उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। ये तो हो गया क्लियर, कौन जीत गया, वीवी गिरी जीत गया, ये सब क्लियर होना चाहिए 69 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो उसके देखिए रिजल्ट क्या होगा, बस्ट क्या होगा। The defeat of the official Congress candidate formalized the split in the Congress। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, कैंडिडेट जीता इंदिरा गांधी का जो इंडिपेंडेंट था, क्या आ गया कांग्रेस की पार्टी में, स्प्लिट, डिवीजन आ गया। ठीक है, डिवीजन किस टाइप से है, आपको क्या लगता है कैसा डिवीजन आएगा? दो पार्टीज बनेंगी, एक बनेगी कांग्रेस ओ, एक बनेगी कांग्रेस आर। तो देखते हैं ओ कौन सी है, आर कौन सी है। द कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपेल्ड द प्राइम मिनिस्टर। जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, कांग्रेस का प्रेसिडेंट समझ पा रहे हैं ना, उस पार्टी का इंदिरा गांधी तो कंट्री की प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उस पार्टी का लीडर कौन है, जो प्रेसिडेंट होता है। उसने क्या किया, कौन था प्रेसिडेंट इस टाइम पे 69 के इलेक्शन में, एस निचलिंगप्पा। ठीक है, ही एक्सपेल, उसने इंदिरा गांधी को पार्टी से मतलब एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया गुस्सा होकर के। जब ऐसा हुआ यू हैड नॉट सपोर्टेड द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस पार्टी, इससे हमारी कांग्रेस का डोमिनेंस वैसे ही कम था। अब लोगों के सामने और क्लियर मैसेज चले गया है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने हरा दिया किसको, ऑफिशियली अनाउंस्ड कैंडिडेट को, विद द हेल्प ऑफ इंदिरा गांधी। तो उसको गुस्से में आके एक्सपेल कर दिया प्राइम मिनिस्टर को फ्रॉम द पार्टी। पार्टी से किया है, एज ए प्राइम मिनिस्टर से कोई नहीं हटा सकता सर, मतलब उन्होंने बोला तुम कांग्रेस पार्टी में नो मोर। शी क्लेम्ड दैट हर ग्रुप वाज द रियल कांग्रेस। बट इंदिरा गांधी नाउ स्टार्टेड शोइंग हर द रियल लीडरशिप क्वालिटीज व्हिच शी हैड। शी वाज वेरी ब्रेव, ठीक है, समझ अच्छी थी, शी वाज वेरी डिप्लोमेटिक, एज अ डेप्यूटी लंदन, शी न्यू हाउ टू टैकल द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। शी वाज अ डॉटर ऑफ नेहरू, तो शी हैड सम कैरेक्टरिस्टिक्स सच लाइक दैट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ओरिजिनल जो कांग्रेस है वो किसकी है, मेरी ही है। देखिए उन्होंने क्या बोला है, द कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपेल्ड द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी। शी क्लेम्ड, इंदिरा गांधी ने बोला दैट द ग्रुप वाज द, दैट हर ग्रुप वाज द रियल कांग्रेस by referred to as a Congress as Congress orientation organization, and the group led by Indira Gandhi came to be called as Congress Reconist। तो सिंडिकेट्स का क्या हो गया, कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस हो गई, हमेशा आ रहा है ना ओ, ओरिजिनल या ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी आप याद करने के लिए याद रख सकते हो। एंड कांग्रेस ये आर हो गई किसकी, इंदिरा, इंदिरा, और उसने अपने इस ग्रुप को बोला है एज अ ओरिजिनल कांग्रेस। ठीक है, these two parties were also described as old Congress and new Congress। Indira Gandhi projected the split as an ideological divide between the socialist and the conservative, between the pro-poor and the pro-rich। Then she had given various statements कि किस reasons की वजह से there was a split, but original reason we know about it। Okay, so and for the abolition of privy purse, you can read this paragraph at least. There can be a marks एक question आ सकता है at least।